Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, my students. Today we are going to discuss the next content theories, which we started in our previous lecture, and we saw the Taylor's scientific approach. Today we are going to see the Mayo's approach, Mayo's work, and his theory about the motivation. This is basically known as Haythorne effect. Haythorne effect. Why it is known as Haythorne effect? Because of his this name given by him and his a series of experiments which he and his team conducted over a nearly 5-year period in a factory which is known as Western Electric Company in Chicago. So his work initially was based on the assumption that the working conditions, means the lighting, the heating condition, the rest periods, the sitting postures, the sitting conditions, and so on. These have a significant effect on the worker's productivity. And based on these assumptions, he conducted his series of experiments in this Western Electric Company in Chicago. So it is basically linked with the productivity. And naturally, as we said earlier, that productivity improvement is basically result of the motivation as well. If the workers are motivated, then naturally there would be a better environment, a better input from the workers, and the productivity will also improve. So these experiments were also performed with the existing conditions, working conditions, and the changed working conditions. Means both with the improved working conditions and with the worsened working conditions, so that the impact of these conditions would be ascertained. What is the result? Okay, this experiment or this series of experiments forced Mayo to accept. What were the conclusions? Working conditions in themselves were not that important in determining productivity levels. So the first result was no. This is not the only condition. Means working conditions, they have seen that if they are improved or if they are worsened, there is not significant impact on these working conditions on the productivity levels. And he also accepted that there are other motivational factors that are needed to be investigated, right? That are needed to be investigated in order to ascertain what is the impact of those motivational factors on the productivity levels of the workers, right? So subsequently, he also conducted this series of experiments with other workers, with assembly line workers, and ultimately the acceptance was there that the working condition is not the only factor. There are other factors. So the following conclusions were drawn by the Mayo, and this is known as Haythorne effect. What are the conclusions? Number one, changes in working conditions and financial rewards have little or no effect on the productivity. So as we discussed earlier as well, when we studied the theory of economic man, that financial rewards only have an impact of a very short period of time. After that period of time, the impact of those financial rewards vanish. So same, Mayo also has this type of conclusion. Okay, then second, when management consult with workers and take an interest in their work, then motivation is improved. So here, the other factor came in.
जो हमने ये कहा कि मोटिवेशन सिर्फ वर्किंग कंडीशन से नहीं आती, यहां पे उन्होंने कहा कि मैनेजर और मैनेजमेंट जो है वो जब इन्वॉल्व करेगी वर्कर्स को, तो उनसे ओपिनियन लेगी, डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करेगी, तो उनकी मोटिवेशन इंप्रूव होगी। तो जब मोटिवेशन, जैसे हमने अभी कहा, जब मोटिवेशन इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट आएगा प्रोडक्टिविटी लेवल पे। तो अगला पॉइंट भी उससे ही रिलेट करता है कि वर्किंग इन टीम्स एंड डेवलपिंग अ टीम स्पिरिट कैन इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। यस, तो जब मैनेजमेंट इन्वॉल्व कर रही है वर्कर्स को, तो बेसिकली वो कर क्या रही है, वो यही तो कर रही है कि एक टीम स्पिरिट डेवलप कर रही है, एक उनको टीम्स की शक्ल में काम करने पे एनकरेज कर रही है। तो जब ये काम होगा, टीम्स बनेंगी। और जो हमने पहले भी देखा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या था, कि इन्वॉल्व किया जाए क्या फ्रंट लाइन वर्कर्स को, असेंबली लाइन वर्कर्स को, लोअर लेवल पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग, इन एम सेटिंग। यानी पहले उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके टारगेट लिए जाएं, उनको कहा जाए कि आप सेट करें अपने टारगेट्स, बट दैट वुड रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द पर्सनल। पर्सनल भी हो सकते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं, लेकिन हमने क्या, तो उनको जब इन्वॉल्व करके चले और हम फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच यूज की, तो हमारे ऑब्जेक्टिव सेटिंग भी अच्छी हो गई, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो गई, और हम अपने जो एम्स थे उनको अचीव करने में भी जल्दी कामयाब हो गए। तो इसको हमने कहा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो यही चीज यहां पे भी आ रही है कि उनको कंसल्ट किया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए, टीम्स बनाई जाए और टीम स्पिरिट को डेवलप किया जाए, ताकि उनमें मोटिवेशन आए। जब मोटिवेशन आएगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी लेवल्स बेहतर हो जाएंगे। Okay, the fourth point was when some control over their own working lives is given to workers, such as deciding when to take breaks, there is a positive motivational effect. तो ये चीज आजकल के, अगर हम इसकी रेलेवेंस देखें, तो ये चीज आजकल के जो एडवांस्ड या जिनको आप कह रहे हैं बहुत बड़ी जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उसमें मोस्टली जो है ये इसको अप्लाई किया जाता है कि भाई आपने, फॉर एग्जाम्पल, दिन में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि 8 आवर्स काम करना है, तो आपने 8 आवर्स पूरे करने हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वो 8 आवर्स कैसे पूरे करने हैं। आप सुबह 9 बजे आ जाएं, 9 बजे आके तो 4 बजे चले जाएं, 5 बजे चले जाएं, तो क्या आपके 8 घंटे पूरे हो गए। आप 9 बजे ना आए, आप 11 बजे आ जाएं, तो आप कितने बजे, 7 बजे चले जाएं, 8 घंटे पूरे हो गए। आप 10 बजे आ जाएं, 10 बजे आके बीच में आप घंटे की ब्रेक कर लें बेशक, मतलब इफ यू फील लाइक दैट। तो ये सारी की सारी चीजें आजकल की हमें ऑर्गेनाइजेशंस में नजर आती हैं कि भाई आप जब थक गए, अगर आप गूगल, बहुत बड़ा नाम है गूगल, यू नो, ऑल पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ द गूगल। गूगल के हेडक्वार्टर में मतलब क्या है, उन्होंने ये हर चीज उनको प्रोवाइड की हुई है कि भाई आप काम करते थक गए हो, आप जाके लेट जाओ, रेस्ट रूम बने हुए हैं, सो जाओ। आपका एक्सरसाइज करने को दिल कर रहा है, आप जिम में चले जाओ, जिम बनाया हुआ उन्होंने पूरा। आपकी तबीयत खराब है, पूरा फुल फ्लेज हॉस्पिटल उनके हेडक्वार्टर के अंदर है। आपका कहीं कोई काम है, कहीं जाने को दिल कर रहा है, नीचे गाड़ियां खड़ी हैं, जाके काउंटर से गाड़ी की चाबी लें और गाड़ी पकड़ें और जाके अपना काम कर रहे हैं। आपने इवन अपने कपड़े धोने हैं, आप कपड़े वहां पे ले हैं, उन्होंने पूरी लॉन्ड्री बनाई हुई है और वहां पे बंदे रखे हुए हैं जो कि आप काम करें, आपके कपड़े धुल के इस्त्री होके शाम को जाते हुए आप ले जाएं। अब ये सारा कुछ क्या है, लिफ्ट्स लगी हुई हैं, लिफ्ट पे आने को दिल नहीं कर रहा, स्लाइड्स भी लगी हुई हैं, स्लाइड से नीचे आ जाए। ये क्या किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कि आपको मोटिवेट किया जाए टुवर्ड्स वर्क, एक हर किस्म की सहूलत आपको वहां पे दी हुई है ताकि आप अपने काम की तरफ ज्यादा तवज्जो दें और आप रिजल्ट देख लें। गूगल इस वक्त, अगर आप पूरी दुनिया में देखें, इंटरनेट की दुनिया में देखें, तो गूगल ने इस वक्त ऐसे ही है, पूरी दुनिया को अपने पंजे में जकड़ा हुआ है। आपको कोई भी चीज चाहिए, कोई काम है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो व्हाट इज सेड, गूगल इट, गूगल इट।
गूगल मैप्स यूज कर लो, यस, हर चीज यहां पे। तो ये यही वजह है कि उन्होंने मोटिवेट करने के ये वाले तरीके जो हैं, जो आज से तकरीबन समझ लें 100 साल पहले आए थे, उन तरीकों को अब आके अपनाया हुआ उन्होंने, राइट। फिर उन्होंने हेथॉर्न इफेक्ट में एक जो पॉइंट मजीद दिया, उन्होंने कहा ग्रुप्स कैन एस्टैब्लिश देयर ओन टारगेट्स और नॉर्म्स एंड दीज कैन बी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनफॉर्मल लीडर्स ऑफ द ग्रुप। यस, हमने इनफॉर्मल लीडर पढ़ा कि जो अपने किरदार की वजह से, अपने पर्सनालिटी की वजह से जो लीडर बन जाता है और उसकी बात सारे सुनते हैं, उसमें फॉर्मल पावर कोई नहीं होती, सब इनफॉर्मल होता है। लेकिन जब ये ग्रुप्स बनते हैं, ये टीम्स बनती हैं, तो मैंने जैसे पहले कहा कि अपने टारगेट्स भी होते हैं, टीम्स के टारगेट्स भी होते हैं, लेकिन ये टारगेट्स लिंक होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ। और इन पे इंपैक्ट किसका आता है? उस इनफॉर्मल लीडर का, जो कि उस ग्रुप में एक लीडर बन जाता है। एक इनफॉर्मली इसको हम लीडर मानना शुरू कर देते हैं। ओके, इन सब कंक्लूजन्स के बाद हम ये भी देखना चाहेंगे कि क्या इस सारी रिसर्च का जो इतने साल उन्होंने की, उसका कोई इंपैक्ट भी है आजकल के बिजनेस पे। तो थोड़ा सा तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो मतलब एक चीज तो ये कि हमने ये कहा कि सिर्फ वर्किंग कंडीशन इंप्रूव ना कर दो, उससे कोई फायदा नहीं है। दूसरे मोटिवेशनल फैक्टर्स, तो जो देखिए, पहला क्या है कि एक ट्रेंड आ गया कि वर्कर्स को रोल दिया जाए, वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जाए इन डिफरेंट इशू डिस्कशन, इन डिफरेंट डिसीजन मेकिंग। और इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया पार्टिसिपेशन। और आजकल के जमाने में इसको कहते हैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। अब जब ये चीज आ गई तो फिर इसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल डिपार्टमेंट्स बनना शुरू हो गए, जो कि पहले तो कभी होते ही नहीं थे, क्योंकि पहले तो पर्सन की इतनी अहमियत होती नहीं थी। वो तो कहते थे भाई फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स ही समथिंग है, उसी से सब कुछ होगा। तो अर्ली 20th सेंचुरी में तो पर्सनल डिपार्टमेंट्स होते ही नहीं थे। लेकिन इस हेथॉर्न इफेक्ट को इन प्रैक्टिस लाने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं, उसके अलावा भी हैं, उनको इन्वॉल्व करो, उनको डिसीजन मेकिंग में लेके आओ, उनको ऑब्जेक्टिव सेटिंग में लेके आओ, टीम्स बनाओ, राइट। तो फिर उन्होंने पर्सनल डिपार्टमेंट बनाना शुरू किए कि जिनका काम ही ये होता था कि ह्यूमन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका नाम फिर थोड़ा सा चेंज हो गया, जिसको हम एचआर डिपार्टमेंट कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, या एचआरएम फिर एक सब्जेक्ट भी आ गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। और ये टीम वर्किंग और जो ग्रुप वर्किंग है, इनको आजकल के जमाने में बहुत से जो आपके मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें अप्लाई भी किया जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट या ये कहां से आया कि भाई ये मोटिवेशनल इंपैक्ट आता है, ये हेथॉर्न इफेक्ट की वजह से। एंड द आइडिया ऑफ इन्वॉल्विंग वर्कर्स, taking an interest in their welfare and finding out their individual goals has opened up new fields of research for industrial psychologists. तो इससे मजीद रिसर्च के मौके मिले कि ये मतलब ये देखा जाए कि भाई एक शख्स जो काम कर रहा है आपके साथ, उसको कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर हैं तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, उसके पर्सनल गोल कौन से हैं। वो आपके साथ अगर काम कर रहा है, डेडिकेशन के साथ कर रहा है, लॉयल है, तो उसके कुछ पर्सनल टारगेट्स भी तो होंगे ना, तो उसको हेल्प किया जाए उन पर्सनल टारगेट्स को अचीव करने में। और अगर वो लॉयल नहीं है, वो उस तरह से काम नहीं कर रहा, तो देन अगेन व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट बिहेवियर, उसको डिग आउट किया जाए। हो सकता है कि वो मतलब कुछ ऐसी अचीवमेंट्स चाह रहा हो जिसके लिए कि उसको क्या कहते हैं, एक पैसेज ना मिल रहा हो, तो उसको हेल्प आउट किया जाए कि भाई तो हम अपने टारगेट अचीव करो। जब उसको हेल्प आउट किया जाएगा टारगेट्स अचीव करने में, तो नेचुरली उसका मोटिवेशन लेवल इंप्रूव होगा। तो असल काम तो वही है कि हमने मोटिवेशन को इंप्रूव करना है। जब मोटिवेशन इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लेवल्स बेहतर हो जाएंगे।